Good morning, everyone. So today we are going to start with Accounting Standard 17, that segment reporting. Basically, this particular accounting standard does not prescribe treatment for any item. It is just a presentation and disclosure related AS. You must have seen that in a business we have different departments located at different place, right? Each of which is known as a segment. Or I might be dealing in multiple products. So each of such product is a segment. So this particular AS basically focuses on that if your segment revenue or segment profit or segment assets exceed a certain percentage of total asset, right, then in that case you need to report it separately, right? In business, we have been using this concept of materiality. Now what is this concept of materiality all about? The concept materiality says कि कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का है, जैसे कि टी एक्सपेंसेस, स्नैक एक्सपेंसेस, तो यू कैन क्लब इट एंड शो एज जनरल एक्सपेंस. बट सच एज सैलरी, रेंट, electricity, these expenses are not a small portion, so you need to show it separately. We also know that if the value of asset is less than 5,000, then in such a situation we don't provide depreciation. 100% is written off to PL. So some way or the other you will find that this particular AS, which is AS 17, more or less based on materiality, right? There is no treatment prescribed in this AS, only presentation and disclosure related matters have been stated. So let us understand uh, what are the segments of a business entity. It can be on the basis of product line, it can be on the basis of geographical region, and how these are to be reported, right? What is that prescribed limit, that when it exceeds this percentage of total, then in that case you need to report it separately. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज. So let us quickly go to our book. Okay, now, okay, so AS 17, you can see that it is segment reporting. Now this particular AS is not mandatory for small and medium size entities. Is mandatory in respect of non SMCs, the one which are very large entities, उनके लिए ये mandatory है. And level 1 entities in case of non corporates, right? छोटी organizations के लिए ये segment reporting वाला AS applicable नहीं है, right? Now आपके institute के book में there are different types of entity level 1, 2, 3. So in case of corporate, it is applicable to large companies, not small and medium sized companies. And in case of non corporates, it is applicable only to level 1 entities, not to level 2 and level 3. अदर एंटिटीज आर एनकरेज्ड. ऐसा नहीं है कि आप पे मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको फॉलो नहीं कर सकते. यू कैन फॉलो, यू कैन शो योर इन्वेस्टर्स segment wise profitability. So in that case you can go for this segment reporting. I have already told you that this is only a AS which tells us about the presentation and disclosure related matters are there. Prescribes principle for reporting financial information about different types of product. There can be segment based on your product line, services and enterprise produces, and different geographical region in which it operates. So you can have segment either on the basis of products, or you can have segments on the basis of geographical branch offices. Like I have so many offices in different parts of the country, so each of which is a segment. Now, whether that segment is reportable or not, we have to see that. So basically it helps us in
determining that okay fine, this segment is performing, this segment is non performing, so we can also take further course of action based on this segment reporting. If I have 5 6 offices, right, 5 6 retail outlets, and if I calculate profit on overall basis, then it may not be possible to locate that which retail shop is giving me a uh, which retail shop is on a profitable which retail shop is ending on a profitable note. So in that case, what I should do, I should prepare the profit and loss of each and every retail shops, and then I can add up and show the aggregate data, right? So ये भी एक advantage है. This you can take it as an advantage of segment reporting. Now, objective, I have already told you. What is the objective of doing this segment reporting? Many enterprises provide groups of product and services or operate in geographical but the that are subject to differing rates of profitability, opportunities for growth, future prospects and risk. Now इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि uh, हर एक रीजन में, सपोज इफ आई टॉक अबाउट से रसगुल्ला, सो मेरा जो स्वीट शॉप है उसमें मे बी if that is located in West Bengal, so I'll be focusing more on rasgullas, and if it is located in some other parts of the country, then they may not be focusing so much on rasgullas, right? So हर एक geographical region का अपना अपना एक रिस्क होता है, अपना अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है, डिफरेंट डिफरिंग रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रहती है. तो इसीलिए हम लोग को सेगमेंट रिपोर्टिंग करके बताना भी बहुत जरूरी है. Helps users of financial information better understand the performance of the enterprise, better assess the risk and returns of the enterprise, and make more informed judgment about the enterprise as a whole. तो सेगमेंट रिपोर्टिंग करने से आपको काफी ज्यादा चीज के बारे में आइडिया लगेगा. अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल सेगमेंट है या ऐसा कोई सेगमेंट है जिसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, so in future you can plan for its discontinuation as well, right? I have already told you this is only a presentation related AS. An enterprise should comply with the requirements of this standard fully and not selectively. If a single financial report contains both consolidated financial statement and separate financial statements of the parent, segment information need to be presented only on the basis of consolidated. तो होल्डिंग कंपनी का अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे होल्डिंग को अपना सब्सिडरी के साथ में कंबाइन करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है. होल्डिंग अपना बैलेंस शीट बनाया, सब्सिडरी अपना बनाया. कंसोलिडेटेड में क्या होता है आप लोगों को मालूम है, होल्डिंग को सब्सिडरी के साथ मिला के एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं. तो जब आप सेगमेंट रिपोर्टिंग दिखाएंगे, आप स्टैंड अलोन बैलेंस शीट का नहीं दिखाएंगे, होल्डिंग का जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसका दिखाएंगे, राइट? ये आपके लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज इन इतना डीप में आपको नहीं पूछेगा, दे वोंट जज यू, दैट इज देयर इन योर फाइनल लेवल. अगर सब कुछ इंटरमीडिएट में पूछ लेगा तो फिर फाइनल में क्या पूछेगा, राइट? सो यहाँ पे वो लिखा है, एंटरप्राइज शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इन द फुल्ली नॉट सेलेक्टिवली. इफ अ सिंगल फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ कंसोलिडेटेड एज वेल एज सेपरेट statements of the parent, segment information need to be presented only on the basis of consolidated financial statement. अभी यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, बिजनेस सेगमेंट देखेंगे, जोग्राफिकल सेगमेंट देखेंगे, इन सब का मीनिंग क्या है हम लोगों को वो समझना है, राइट? बिजनेस सेगमेंट का मतलब तो समझ जाएंगे कि एक बिजनेस का एक पार्ट या एक कंपोनेंट बोल सकते हैं, राइट? जिसको हम दूसरे से अलग कर सकते हैं. So a business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service or group of related product or service, and that is subject to risk and returns that are different from others business segments. Business segment सिंपल बोल दिया है कि सपोज मान लो मेरा 4 डिपार्टमेंट्स है, राइट? मैं क्लोथ भी बनाता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाता हूँ, मैं टेलरिंग सेक्शन भी है मेरा. सो दीज 3 आर डिफरेंट सेगमेंट्स. डिपार्टमेंट 1 में मैं क्लोथ बना रहा हूँ, सो ये मेरा एक बिजनेस सेगमेंट हो गया. फिर मैं उससे रेडीमेड क्लोथ्स भी बना रहा हूँ, ये मेरा अलग है. मैं बाहर का कपड़ा भी स्टिच करता हूँ, ये अलग एक सेगमेंट हो गया. सो डिस्टिंग्विशेबल सेगमेंट होना चाहिए, राइट? Component of an enterprise that is engaged either in providing an individual product और सर्विस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस, बस सबका अपना अपना रिस्क एंड रिटर्न्स है, एंड वो किसी दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है.
Factors that should be considered in determining whether products and services are related include नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो ये अलग होना चाहिए, प्रोडक्ट का नेचर अलग होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस अलग होना चाहिए. द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज. अगर मैं कपड़े की बात करूं तो मैं होलसेलर्स को बेचूंगा, अगर मैं रेडीमेड शर्ट्स की बात करूं तो वो मैं रिटेलर्स को बेचूंगा. सो मेरा कस्टमर बेस भी अलग अलग है. द मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट or provide these services. If applicable, the nature of the regulatory environment, for example, banking, insurance, and public utilities. Right? तो सेगमेंट, बिजनेस में जो सेगमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स में होने चाहिए, सिमिलर नेचर के नहीं होने चाहिए. राइट? ओके. A single business segment does not include product services with significantly differing risk and return. While there may be dissimilarities with respect to one or several of the factors listed in the business of definition of business segment, and products and services included in a single business segment are expected to be similar with respect to the majority of the factors. ठीक है, बहुत क्लियर है. तो सर मैं 5 प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं, मेरा 5 बिजनेस सेगमेंट हो गया, अलग अलग, दोनों दोनों कोई सिमिलैरिटी नहीं है. राइट? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट भी बात कर ली, सबका प्रोडक्शन प्रोसेस भी मोटा मोटी अलग है, कस्टमर बेस भी अलग अलग है. तो ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स में डिसिमिलैरिटीज होना चाहिए. राइट? अगर रिस्क एंड रिटर्न्स डिफरिंग है तो आप उसको सेगमेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको अब अलग सेगमेंट पकड़ना पड़ेगा. अच्छा, ज्योग्राफिकल सेगमेंट तो आपको बोलने का दरकार नहीं है, लोकेशन वाइज है. यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है, that is engaged in providing products or services within a particular economic environment, Kolkata, and that is subject to risk and return that are different from those of components operating in other economic environment. अभी एनवायरमेंट का बात हो रहा है, कोलकाता, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, यू ऑल नो, सबका अपना अपना इकोनॉमिक एनवायरमेंट है. फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन आइडेंटिफाइंग ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स: similarity of economic and political conditions, relationship between operations in different geographical areas, proximity of operations, special risk associated with operations in a particular area, exchange control regulations, right? The underlying currency risk. सपोज मेरा एक ऑफिस है, एक एक रिटेल आउटलेट है यहां पर और एक है लंदन में. सो दो ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो गया मेरा. राइट? तो जब आप ज्योग्राफिकल सेगमेंट देखते हैं तो आपको देखिए लोकेशन ऑफ इट्स ऑपरेशन भी देखना है और लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर भी देखना है. तो आप कैसे भी करके ज्योग्राफिकल सेगमेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या हैं? तो क्लासिफिकेशन आइदर यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस सेगमेंट और यू कैन गो फॉर द ज्योग्राफिकल सेगमेंट. अभी इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट किसको बोला जाता है, मैंने आपको बताया ना. रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है वो अपने को देखना है. तो रिपोर्टेबल सेगमेंट उन सेगमेंट्स को बोला जाता है, इज अ बिजनेस सेगमेंट और अ ज्योग्राफिकल सेगमेंट आइडेंटिफाइड on the basis of foregoing definition for which segment information is required to be disclosed by AS17. मतलब सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करो. सपोज मान लो मेरे 6 सेगमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, उसमें से 4 रिपोर्टेबल आते हैं.
और दो नॉन रिपोर्टेबल, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ए, बी, सी, डी, अदर्स। अदर्स में ये दो सेगमेंट का आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपना रिपोर्टिंग करूंगा, प्रॉफिट का, एसेट्स का, रेवेन्यू का। तो पहले तो ये देखो कि एज पर एएस 17, राइट, कितने मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं? Business segment or a geographic identified on the basis of foregoing definitions for which segment information is required to be disclosed by AS 17। तो चार अगर मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, इन चारों को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, फिर लास्ट में अदर्स बोल के दिखाएंगे। अभी आपको जो है सेगमेंट इंफॉर्मेशन जो अपने को अलग अलग करके क्या क्या चीज का होता है, एक सेगमेंट रेवेन्यू होता है, राइट, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट लाइबिलिटीज, राइट, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सेगमेंट रेवेन्यू मतलब सेल्स, आपको सबको समझ में आ रहा है? मतलब इन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का आपको क्या क्या अलग करके दिखाना है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स, ये तीन चीज के बारे में हम लोग जनरली बात करते हैं। सेगमेंट रेवेन्यू is the aggregate of the portion of enterprise revenue that is related to that particular segment। बहुत बार क्या होता है, पूरा रेवेन्यू का कलेक्शन हेड ऑफिस में हो रहा है, तो एक प्रॉपर एलोकेशन का बेसिस होगा, तो उसमें से जो मेरे हिस्से में आएगा वो भी हमको लेना पड़ेगा। relevant portion of enterprise revenue that are allocated on the reasonable basis to a segment, राइट, मेरे इस सेगमेंट का जो भी रेवेन्यू है या मेरे को जो एलोकेट हुआ है वो वाला। कई बार क्या होता है, हम लोग एक डिपार्टमेंट से इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी होता है, तुम लोग डिपार्टमेंट्स में देखा है, तो इसमें अलग से दिखाएंगे, एक्सटर्नल प्लस इंटर डिपार्टमेंटल मिला के टोटल सेगमेंट रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू में खाली प्योरली ग्रॉस इनफ्लो ऑफ, मैंने आपको एएस 9 भी पढ़ाया था, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन arising from sale of goods, providing of services or use of enterprise resources by other enterprise, तो उसमें इंटरेस्ट डिविडेंड था ना, तो वो सब चीज यहाँ पे नहीं है। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या नहीं आएगा, खाली सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज आएगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स नहीं आने वाला है, अगर कोई मेरे को एबनॉर्मल गेन्स वगैरह हुआ है तो। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एडवांसेस और लोन्स टू अदर सेगमेंट अनलेस द ऑपरेशंस ऑफ द सेगमेंट्स आर प्योरली ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अगर मेरा फाइनेंस का ही बिजनेस है, जैसे बैंकिंग कंपनीज का अगर बात करूं, तो उसमें इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम समझ में आता है, लेकिन अदरवाइज इंटरेस्ट डिविडेंड मेरा सेगमेंट रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा, वो कि मेरा टर्नओवर नहीं है वो। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेट अनलेस द ऑपरेशन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, तो मेरा सेगमेंट रेवेन्यू में ये सब चीज नहीं आएगा, प्योरली सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, सिंपल समझ के रखो, सेल ऑफ गुड्स ऑब्लिक प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। सेगमेंट एक्सपेंस को अलग से दिखाने का दरकार नहीं है, लेकिन सेगमेंट एक्सपेंस हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सेगमेंट रिजल्ट भी कैलकुलेट करके अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है। तीन चीज, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट्स जिसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे, एंड सेगमेंट एसेट्स, राइट। तो सेगमेंट एक्सपेंस इज द एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ दैट सेगमेंट, या कोई कॉमन खर्चा जो मेरे में एलोकेट हो रहा है, जैसे आप लोग डिपार्टमेंट्स में देखे हैं, कॉमन खर्चा हर डिपार्टमेंट में एलोकेट होता है। जैसे मैंने किसी डिपार्टमेंट को सेल किया तो वो मेरा इंटरनल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर रेवेन्यू में आ रहा है, वैसे ही वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर उसका एक्सपेंस में आ जाएगा। अगेन एबनॉर्मल लॉसेस नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, लॉस नहीं आएगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं आता है, राइट। और सेगमेंट रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट, दैट इज
revenue minus expense. Segment assets. Segments assets are those operating assets that are employed by a segment in its operating activities and that either are directly attributable to the segment or can be allocated to the segment on a reasonable basis. If the segment results of a segment include interest and dividend income, its segment assets should include related loans and advances. जैसे मान लो अगर बैंकिंग कंपनीज का अगर हम लोग बात करेंगे, बैंकिंग कंपनी जो डिपॉजिट्स लेती है कस्टमर से वो उनके लिए लाइबिलिटी हो गया, एंड जो लोन्स एंड एडवांसेस जो कस्टमर को दे रही है वो उनके लिए एसेट हो गया. उन लोन्स एंड एडवांसेस में उनको इंटरेस्ट मिलता है. तो बैंकिंग कंपनी का जब सेगमेंट रेवेन्यू निकालेंगे हर ब्रांच का, तो उसमें वो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस रेवेन्यू में लिया जाएगा. तो सेगमेंट एसेट्स में वो लोन्स एंड एडवांसेस को ले लेना. क्लियर. लेकिन नॉर्मल एंटरप्राइज के केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ये मेरा धंधा नहीं है. मेरा धंधा है माल खरीद के बेचना, मेरा लोन देने का धंधा नहीं है. तो उस केस में इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये मेरा इन रेवेन्यू में नहीं लिया गया, तो सेगमेंट एसेट्स में भी इनको हटा दिया जाएगा. राइट. सेगमेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट्स, assets used for general enterprise or head office purpose. Segment assets are determined after deducting relevant allowances or provisions that are reported as direct set off in the balance sheet of the enterprise. Right. Segment liabilities भी बोला है, आप लोगों को मालूम है, बहुत सिंपल सा चीज है. जैसे बैंकिंग कंपनीज में, जैसे मैंने आपको बताया, डिपॉजिट्स लाइबिलिटीज होती है. राइट. तो जब सेगमेंट लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, अगर आप एक्सपेंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंकिंग कंपनी में, तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट सेगमेंट लाइबिलिटीज लेना पड़ेगा. तो वही चीज जैसे वहां लिखा था सेम चीज वहां पे लिखा है. ठीक है. ओके. अभी हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में आपको बताएंगे, अभी हम आपको खाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में अवेयरनेस करवा रहे हैं आपको. तो हम लोगों को समझ लीजिए, सेगमेंट रेवेन्यू दिखाना है, सेगमेंट रिजल्ट दिखाना है, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट लाइबिलिटीज. राइट. अब ये आप लोगों का बहुत सिंपल चीज है. जैसे इंटरेस्ट इनकम सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं लेते, वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं लेते हैं. लेकिन वो AS16 का कहानी कर रहा है, बोरोइंग कॉस्ट, जो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा है. कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आपका क्वालिफाइंग अगर इन्वेंट्री है, ऐसा इन्वेंट्री जिसको बनाने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो इन दैट केस यू नो दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच इन्वेंट्री, उसका इंटरेस्ट उस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ले लिया जाता है. तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे. तो वो अलाउड है. राइट. सच इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर्ड एज सेगमेंट एक्सपेंसेस.
एलोकेशन वर्ड का मतलब मेरे को आपको समझाने का दरकार नहीं, आप लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट्स किया है ग्रुप वन में। कोई भी चीज कॉमन होता है दैट कैन बी इजीली एट्रीब्यूटेबल, राइट, तो उसको आप डिवाइड करेंगे ऑन सम रीजनेबल बेसिस। एंटरप्राइज लुक्स to its internal financial reporting system as a starting point for identifying those items that can be directly attributed or reasonably allocated to segments. जस्ट गो थ्रू कर लो। अभी क्या है, प्राइमरी सेगमेंट भी होते हैं, सेकेंडरी सेगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपके प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग कौन कौन सा होगा? इट विल बी आइदर ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल सेगमेंट, दोनों तो हो नहीं सकता। अगर आपका प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसे मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी हूं, मैं कार मेकिंग इंडस्ट्री में भी हूं, मैं एफएमसीजी में भी हूं, इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस, सो द पहला बात आप चीज समझिए, द सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ एन एंटरप्राइज शुड गवर्न वेदर इट्स प्राइमरी सेगमेंट, जो रिस्क एंड रिटर्न है ना हर एक सेगमेंट का, उससे ये मालूम पड़ेगा कि आपका प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस एंटिटी बेसिस पे होगा कि जोग्राफिकल सेगमेंट्स के हिसाब से होगा। If risk and return of an enterprise are affected predominantly by differences in the product and services, its primary format for the reporting should be business segment, with secondary information reported geographically. अगर मेरा मेन है कि मैं डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में ऑपरेट कर रहा हूं, यही मेरा रिस्क एंड रिटर्न का मेन फैक्टर है, तो मेरा जोग्राफिकल हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगा मेरा बिजनेस सेगमेंट्स। क्लियर? तो एक मेरा प्राइमरी रिपोर्टिंग सेगमेंट होता है और एक मेरा सेकेंडरी होता है, राइट? ओके, अभी बिजनेस एंड जोग्राफिकल सेगमेंट्स, right? Generally, business and geographical segments are determined on the basis of internal financial reporting to the board of directors and chief executive officer. But if such segment does not satisfy the definitions given in AS, then following point should be considered for. If one or more of the segments reported internally to the directors and management is a business segment or a geographical segment based on the factors in the definition, but others are not, right? Paragraph below should be applied only to those internal segments that do not meet the definition, right? Now, for those segments reported internally to the directors and management that do not satisfy the definition, management of the enterprise should look to the next lower level of internal segmentation that reports information along with product and service lines or geographical lines as appropriate under the definition. If such an internal reported low level segment meets the definition of business segment, the criteria for identifying the reportable segment should be applied to that segment. एक बार रीड कर लीजिए।
क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल है। बोलता है जब भी आप कोई भी बिजनेस सेगमेंट या जोग्राफिकल सेगमेंट को डिटरमाइन करते हैं, राइट, तो हो सकता है वो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशंस दिया हुआ है बिजनेस सेगमेंट का और आपका जोग्राफिकल सेगमेंट का, तो इसमें हो सकता है वन और मोर ऑफ द सेगमेंट्स रिपोर्टेड इंटरनली टू द डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट इज अ बिजनेस सेगमेंट और अ जोग्राफिकल सेगमेंट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स इन द डेफिनेशन, बट बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए क्या बोल रहा है, उसके लिए हम लोग फर्दर सेगमेंटेशन में जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका उसको फिर फर्दर मत तोड़ो। अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या कोई पर्टिकुलर सपोज मेरा रिटेल शॉप, उसको हम जोग्राफिकल, सपोज जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से मैंने इस रिटेल शॉप में या मेरा इस ऑफिस को मैंने सेगमेंट बताया, जोग्राफिकल सेगमेंट बता दिया है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, जोग्राफिकल सेगमेंट बता दिया। अब इसको फर्दर सेगमेंटेड नहीं करना है अपने को, लेकिन अगर ये जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से ये नहीं आ रहा है, कुछ भी एक रीजन है, तो उसको हम फर्दर सेगमेंटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट लोअर लेवल ऑफ इंटरनल सेगमेंटेशन, राइट। आपके एग्जाम में क्या होगा, ये सब इतना डीपली नहीं पूछेगा। सिंपल आपको चार पांच प्रोडक्ट लाइन दे देगा, चार पांच ऑफिस दे देगा, आप सबको एक एक बिजनेस सेगमेंट, सबको एक एक जोग्राफिकल सेगमेंट मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन या तो आपको बिजनेस सेगमेंट वाइज करना है या जोग्राफिकल सेगमेंट वाइज करना है, दोनों के हिसाब से आपको नहीं करना है। A business segment or a geographical segment should be identified as a reportable segment. ठीक है, क्लियर कर दिया है। 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू होना चाहिए उस सेगमेंट का। फिर और बोला है 10% और मोर ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस सेट ऑफ नहीं करना है। जैसे 20, 40, 50, 60, 10, 70, ठीक है। तो टोटल सेगमेंट जो प्रॉफिट में उसका कितना हो गया, 20, 40, 60, 60, 60, 120, 190, और सेगमेंट जो टोटल लॉस में है वो उसका टोटल है 60। तो 190 और 60 में हाई क्या है, 190, राइट, इन एब्सोल्यूट अमाउंट। सो 190 का 10%, सो 19 इज द क्राइटेरिया। तो ये रिपोर्टेबल हो गया, रिपोर्टेबल हो गया, रिपोर्टेबल हो गया, रिपोर्टेबल हो गया, ये नॉट रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल हो गया। 10% प्रॉफिट के केस में 10% किसका लेना है, टोटल कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट। ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो 190 आएगा, ऑल सेगमेंट इन लॉस का टोटल करेंगे तो 60 आएगा। तो दोनों में बड़ा क्या है, 190, उसका 10%, सो 19 इज द क्राइटेरिया। तो 19 के ऊपर है, 19 के ऊपर है, 19 के ऊपर है, 19 के ऊपर है, 19 के नीचे है, तो ए बी सी डी एफ ये सब रिपोर्टेबल हो गया, ठीक है।
और सेगमेंट एसेट्स में भी वही चीज है, 10% और मोर ऑफ द टोटल एसेट्स। तो कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए, और वर्ड यूज किया है, रेवेन्यू वाइज रिपोर्टेबल है, तुम नेट प्रॉफिट वाइज या तुम एसेट वाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट चाहे तो किसी एक सेगमेंट को रिपोर्टेबल बना सकता है, भले ही वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल क्यों ना किया हो। अच्छा, अभी जैसे ध्यान से देखो, सपोज मान लो एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहा है कि मान लो मेरे 7-8 सेगमेंट्स हैं, एंड 10% वाला जो क्राइटेरिया था, जो भी इन क्राइटेरिया को मैंने चेक किया, उन 7-8 में खाली 3 ही मेरा रिपोर्टेबल आया, बाकी जितने भी है सब नॉन रिपोर्टेबल हैं। तो उनको मैं अदर्स करके दिखाऊंगा, बोला आप कर नहीं सकते हैं ऐसा। 75% तक ऑफ टोटल रेवेन्यू, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, इसका 15 है, इसका 20, इसका 30, इसका 7, इसका 8, फिर 3, ऐसे कर करके किसी का 4, मतलब किसी का भी ऐसे करते करते लास्ट में 100 है। तो 10% के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये मेरा रिपोर्टेबल बन गया 100 का, ये भी रिपोर्टेबल बन गया, ये भी रिपोर्टेबल बन गया। ये सब मेरे नॉट रिपोर्टेबल हैं क्योंकि कोई भी 10 से ज्यादा नहीं है। अभी आप देखिए ए बी सी का टोटल करो, 65 आ रहा है, तो मेरे को डी लेना पड़ेगा, डी लेने से 72 आ रहा है, फिर मेरे को ये भी लेना पड़ेगा, तब मेरा 80 आ रहा है, तब 75% का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। बाकी सबको मैं नॉन रिपोर्टेबल करके दिखाऊंगा। मतलब जब तक मेरा 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो जाता, तब तक मेरे को इसको रिपोर्टेबल करते हुए दिखाना ही पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे बोला है, if the total external revenue attributable to reportable segment constitutes less than 75% of total, additional segment should be identified as reportable। उनको आप ऐड करते जाए, भले ही वो 10% वाला थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया क्यों ना फुलफिल किया हो। पिछले साल जो रिपोर्टेबल था, इस साल भी उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट में डालना पड़ेगा। पिछले साल कोई अगर रिपोर्टेबल नहीं था, इस साल रिपोर्टेबल हुआ है, तो अपने तो करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का फिगर दिखाते हैं ना, तो पिछले साल को उसको वापस से लाना पड़ेगा।
उसको घुसाना होगा। सब पिछले साल का अब नहीं होगा एडिट, इनप्रैक्टिकेबल है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सेगमेंट मान लो कोई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि AS17 प्रोहिबिट नहीं करता है। जितने भी सेगमेंट आप रिपोर्टेबल कर रहे हैं, सबका जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया गया है उन प्रॉफिट्स को या रेवेन्यू को अराइव करने में, वो सेम होना चाहिए, क्योंकि AS17 प्रोहिबिट नहीं करता है। तो अगर कोई डिफरेंट फॉलो करे तो AS17 तो मना नहीं कर रहा है, राइट? बट दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड उसका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट फॉर दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब्ड। प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट बता दिया गया है, राइट? ध्यान से देखिएगा। An enterprise should disclose the following for each reportable segment. प्राइमरी, जो भी प्राइमरी क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे, या तो बिजनेस सेगमेंट वाइज हो रहा है या जोग्राफिकल सेगमेंट वाइज हो रहा है। तो प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आप सेगमेंट रेवेन्यू, इंटरनल एक्सटर्नल, सेगमेंट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लाइबिलिटीज, total cost incurred during the year period to acquire segment assets that are expected to be used during more than one accounting period, total amount of expenses included in the segment result for depreciation and amortization in respect of segment assets, total amount of significant non-cash expense other than depreciation that were included in therefore deducted in, मतलब ये सब चीज आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। An enterprise that reports the amount of cash flows arising from operating, investing, financing of a does need not disclose, जैसे सेगमेंट कैश फ्लोज भी आप बनाते हैं, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन एंड नॉन कैश एक्सपेंस। Enterprise should present a reconciliation between the information disclosed for reportable segments and aggregate information in the enterprise financial statement, right? तो आपको रिकंसिलेशन भी दिखाना पड़ेगा। ओके फाइन, सेगमेंट रेवेन्यू में मैंने ये सब नहीं लिया और उसको जब मैं ले लूंगा तो एंटरप्राइज रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये सब इतना आपका हाई फाई नहीं आएगा आपके एग्जाम में, टू बी वेरी फ्रैंक। If primary format of an enterprise for reporting segment information is business segment, it should also report the following information. अगर प्राइमरी बिजनेस है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, सेकेंडरी सेगमेंट का बारे में बात हो रहा है। अगर प्राइमरी बिजनेस है तो सेकेंडरी के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, जोग्राफिकल रीजन वाइज, सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स बाय जोग्राफिकल एरिया, ठीक है,
segment revenue from external customers by geographical area based on the geographical location of each customers for each geographical segment whose revenue from sales to external customer is 10% or more of enterprise revenue. तो जोग्राफिकल रीजन वाइज आपको सेगमेंट रेवेन्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा. जोग्राफिकल रीजन वाइज आपको सेगमेंट एसेट्स भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट इनकर्ड जोग्राफिकल रीजन वाइज. और अगर प्राइमरी जोग्राफिकल है तो सेकेंडरी बिजनेस सेगमेंट हो गया. तो उन बिजनेस सेगमेंट्स का आपको जिसका रेवेन्यू और जिसका एसेट्स 10% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स है तो उनको ये तीन चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा. मोटा मोटी सारा ही डिस्क्लोज करना है, खाली नेट प्रॉफिट नहीं है इसमें. और क्या, सेकेंडरी का खाली नेट प्रॉफिट का नहीं है लफड़ा. ठीक है, आइए. अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़िए. The chief accountant of Sports Limited give the following data regarding its 6 segments. ठीक है, पहले सेगमेंट रेवेन्यू वाइज देखते हैं. सेगमेंट रेवेन्यू 1200 है टोटल. एम का 300, एन का 620, ओ का 80, पी का 60, क्यू का 80, आर का 60. तो अगर अपने सेगमेंट रेवेन्यू वाइज जाएंगे तो 1200 का 10% होता है 120. तो ये मेरा रिपोर्टेबल हो गया, ये मेरा रिपोर्टेबल हो गया. अगर अपने सेगमेंट एसेट्स वाइज जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल हो गया, ये भी रिपोर्टेबल हो गया, ये भी रिपोर्टेबल हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और है ना, आइदर सेगमेंट रेवेन्यू वाइज रिपोर्टेबल बनो और एसेट वाइज रिपोर्टेबल बनो और रिजल्ट वाइज बनो. अब अपने रिजल्ट वाइज में आते हैं तो 50, 10, 10, 30. तो टोटल सेगमेंट इन प्रॉफिट का टोटल कितना रहा? 100. और टोटल सेगमेंट इन लॉस का टोटल कितना रहा? 200. तो 100 और 200 में बड़ा क्या है? 100 और 200 में बड़ा है 200. उसका 10% करो तो यहां पर भी लिमिट 20 हो गया. तो ये सब तो रिपोर्टेबल हैं, अब आर भी रिपोर्टेबल बन जाएगा. आई गेस यही होना चाहिए, ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल. एज पर रेवेन्यू 2 सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जा रहा है. अब ये जोग्राफिकल रीजन वाइज है कि बिजनेस सेगमेंट वाइज है, उससे अपने को मतलब नहीं है. अपने को तो रिपोर्टेबल चेक करना है. रिपोर्टेबल के लिए प्राइमरी सेकेंडरी में वो लफड़ा है. प्राइमरी में अपने इतना सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे, राइट, और सेकेंडरी में कुछ कम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है.
राइट? तो अपने का मेन बात क्या हो गया, मैं आपको बताता हूं। पहले देखो, रिपोर्टिंग आपको जो करना है वो बिजनेस वाइज करना है कि जोग्राफिकल वाइज करना है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाएगा। अब हर एक बिजनेस सेगमेंट में वो लगाओ, या हर एक जोग्राफिकल में वो कंडीशंस लगाओ रिपोर्टेबल वाला, एंड उस हिसाब से फिर रिपोर्टिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो सारा ही होना चाहिए, देख लेते हैं। लेट अस सी क्या बोलता है। ये तो प्रोविजंस लिख दिया है यहां तक तो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर क्राइटेरिया एम एन आर रिपोर्टेबल, ठीक है, मैंने यही बोला। देखो, सब रिपोर्टेबल है, ऑल आर रिपोर्टेबल। तो ये लोग क्या किया, पहले रेवेन्यू के बाद में रिजल्ट वाला लगा दिया, मैंने पहले एसेट वाला लगाया क्योंकि वो इजी हो रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बोलता है यूजुअली जो आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है वो जनरली मार्केट प्राइस पे होना चाहिए। बट आपका अगर अपना कोई पॉलिसी है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर को, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज फॉलोड कंसिस्टेंटली। वो डिस्क्लोजर में भी यही वाला चीज बोला था। राइट? तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। Segment reporting requires that inter-segment transfer should be measured on the basis enterprise actually used to price this transfer. The basis of pricing and any change therein should be disclosed. Hence, enterprise should can have its own policy for price transfer price. However, whichever policy is followed, it should be followed consistently. बहुत सिंपल है। आइए, इलास्ट्रेशन 3। तो देखिए, अभी जितना भी क्वेश्चंस आया आपको कहीं पे भी ये नहीं बता रहा है कि आप बताइए ये बिजनेस सेगमेंट, ये बिजनेस सेगमेंट है कि ज्योग्राफी, उस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली देवे हों टास्क, ये खाली वो रिपोर्टिंग वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने बोलेगा। Messes XYZ Limited has three segments, namely XYZ. Total assets of the company are 10 crores. Segment X 2 crore, segment Y 3 crore and 5 crore. तो हो ही गया। ओके, टैक्स एसेट्स को एक्सक्लूड करने बोला था, रिमेंबर? हाँ, टैक्स एसेट्स included in the assets of each segments are X का 0.5, ओके, Y का 0.4, Z का 0.3। तो पहले अपने को क्या करना है, टैक्स एसेट्स का टोटल कितना है, क्लियरली बोल दिया टैक्स एसेट्स का टोटल को इंक्लूड नहीं करना है। डेफर्ड टैक्स एसेट AS22 आप लोग पढ़े हैं। तो इसका टोटल है 1.2 करोड़, तो 10 में से 1.2 हट गया तो बचा 8.8। 8.8 का 10% करेंगे 0.88 करोड़। अभी इसका 2 करोड़ में भी टैक्स एसेट हंसाओ तो ये रिपोर्टेबल हो गया। इसका 3 करोड़ में टैक्स एसेट हटाओ 2.88, तो ये भी रिपोर्टेबल हो गया। ठीक है, और उसका 5 में वो हटाओ 0.3, तो वो भी रिपोर्टेबल हो गया। सब रिपोर्टेबल ही है, 10% को एक्सीड कर रहा है। बट कैलकुलेशन में दिखाना है कि तुमने डेफर्ड टैक्स मतलब टैक्स एसेट्स को हटा दिया है। नेक्स्ट, prepare a segment reporting for publication in diversifiers limited from the following details of the company's 3 division and the head office। ठीक है, forging shop division,
ब्राइट बार डिवीजन एंड फिटिंग डिवीजन, ओके। सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन, ये तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो गया। अदर डोमेस्टिक सेल हो गया, एक्सपोर्ट सेल्स हो गया, ठीक है। ब्राइट बार डिवीजन का सेल्स टू फिटिंग इंटर हो गया, और एक्सपोर्ट सेल्स करता है लोग, फाइन। ये इंटर कुछ नहीं करता, एनीवे anyway, ओके। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? अच्छा, प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट सबका दिया हुआ है। हेड ऑफिस कॉस्ट रीएलोकेटेड दिया हुआ है, इतना कॉस्ट एलोकेट हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दे दिया, नेट करंट एसेट्स दे दिया, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दे दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए आप लोग। प्लीज काइंडली गो थ्रू। पहला बात, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, बहुत लोग तो परसेंटेज कैलकुलेशन में लग गए होंगे, राइट। सो आवर फोकस शुड नॉट बी ऑन कैलकुलेटिंग दिस परसेंटेज। यहाँ पे बोला है सेगमेंट रिपोर्ट बनाओ, तो सेगमेंट रिपोर्ट बनता कैसे है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, सबसे पहले बात अगर मैं सेल्स की करूं, पहले पीएल का बनाते हैं। क्लियरली बोला गया है, जब भी आप सेगमेंट रेवेन्यू दिखाएंगे आपको एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग करके दिखाना है। इज दैट फाइन? आपको एक्सटर्नल दिखाना है और फिर इंटरनल दिखाना है, राइट। उसके बाद आप टोटल दिखाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। तो ये आपने पढ़ा था कि एक्सटर्नल अलग दिखाना है, इंटरनल अलग दिखाना है, दिखा देंगे।
उसके बाद सेगमेंट वाइज आपको प्री टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है। यहां पे आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना, मेरा बात आप ध्यान से समझिएगा। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द फुल बैलेंस शीट, आपको पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है। क्लियर? तो जैसे अगर मैं एक्सटर्नल सेल्स की बात करूं, कितना टोटल आ रहा है, करो 90 प्लस 3150, 90 प्लस 3150, इट इज कमिंग टू 6225। और इसका एक्सटर्नल सेल्स 300 है, और इसका तो इंटरनल है ही नहीं। ठीक है, ओके। सो लेट अस कम, my handwriting will be bad because I'm writing on a straight pad. तीन डिवीजन है, फॉर्जिंग, ब्राइट एंड फिटिंग। सबसे पहले मेरे को दिखाना है सेगमेंट रेवेन्यू। इस पे हमारा आएगा एक्सटर्नल सेल्स 6225, 300, 270। कितना आ रहा है बोलिए? 6795। इंटर सेगमेंट सेल्स एक दूसरे को, इसने ब्राइट को किया है 4575 वैसे ही, और इसने फिटिंग को किया है 45, इसका नहीं है। ये टोटल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग किया है ना आपने। जब भी आप टोटल करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में भी आपने देखा है, ये बाहर नहीं आता। तो सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू दिखाना है आपको, तो आप इजीली दिखा सकते हैं। जोड़ लीजिए, ये 800, 10,800, 345, 270।
लेकिन ये हमारा 6795 ही रहेगा। उसके बाद सेगमेंट रिजल्ट आप देख सकते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। 240 है इसका। यू कैन जस्ट चेक। 3012। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब कंसिडर नहीं होता है। तो ये जो भी एचओ एक्सपेंसेस हैं, इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, बट जबरदस्ती का इन लोगों ने एलोकेट किया है, ये एलोकेट नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोविजन में क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, हेड ऑफिस, दैट एंटरप्राइज लेवल। अगर आप सेगमेंट का एंटरप्राइज लेवल में आप किए हैं तो उसको आप एलोकेट करेंगे, समझ में आ रहा है। बट हेड ऑफिस एक्सपेंसेस रीएलोकेटेड लिखा है, नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये जो है, इसका टोटल कितना आ रहा है? 72, 36, 36, तो 144 आ रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट भी लेस कर दीजिए। 6, 6, 8, 14, 216। तो ये हमारा पीबीटी आ जाएगा पूरे कंपनी का। तो इस तरीके से सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट्स दिखाएंगे हम लोग। और सेगमेंट एसेट्स का आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। फॉर्जिंग, ब्राइट फिटिंग, ये अनएलोकेटेड जो हेड ऑफिस के कॉलम में था।
राइट? तो इस टाइप का क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा आपके, एज से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, राइट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्ली, अगर सब कुछ आपको इंटरमीडिएट में टेस्ट करेगा तो फिर फाइनल में क्या करवाएगा, राइट? तो डोंट, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, एंड ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स वगैरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, एंड इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। एकदम क्लियर है? आइदर यू कैनॉट डू इट ऑन बोथ, आइदर इट हैज टू बिजनेस सेगमेंट और जोग्राफिकल। बिजनेस है तो सेकेंडरी जोग्राफिकल हो जाएगा, जोग्राफिकल प्राइमरी है तो सेकेंडरी बिजनेस हो जाएगा। तो आपको क्या फॉलो करना है, ये आपका वो जो मेन जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, रिस्क रिटर्न, अगर जोग्राफिकल वाइज आपका बिजनेस फैला हुआ है तो वो बेटर है। सेम प्रोडक्ट, आप मान लीजिए सेम प्रोडक्ट लाइन में है और आप जोग्राफिकल रीजन वाइज, तो आप जोग्राफिकल सेगमेंट फॉलो करेंगे। इफ यू आर इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस, सो यू गो फॉर बिजनेस सेगमेंट वाइज, राइट? तो ये वही था पूरा, एएस जनरली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का आपको ये सब दिखाना पड़ेगा, मैंने आपको दिखा दिया अभी। प्राइमरी, सेकेंडरी, फर्दर सेगमेंटेड। प्राइमरी का आपको ये सब चीज दिखाना है, और अगर प्राइमरी बिजनेस है तो जोग्राफिकल रीजन वाइज आपको सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एसेट्स, और अगर प्राइमरी जोग्राफिकल है तो बिजनेस सेगमेंट का आपको सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एसेट्स। क्लियर? सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। In the next session we will do some other AS, right? These AS, जिन AS में ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स था, जैसे AS19, AS20, इनको हमने 3-3, 4-4 क्लास किया है। बट जरूरी नहीं है जो AS अगर एक क्लास में हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, आप लोग भी आज ही जाके इसको क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, राइट? इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू सम अदर AS। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।